Come. Dr. Chauhan, may please come on the dais. I'll invite Mr. Mrinal Agarwal, Chief Executive Officer, Divya Bhumi, Agri Crop Producer Company, Agra, to please come on the dais. And with us, Mr. Kapil Dev, Chief Business Officer, NCDEX, Mumbai. He will be joining virtually with us. I welcome all of you. क्या करेंगे, आपका स्वागत है, अभिनंदन है. How important is agriculture in our country? We all are aware of it. It does not need any further elaboration. It not only offers food security, but also largest number of employment, livelihood opportunities. They are there in the agriculture sector. आपने अभी देखा पेंडेमिक के समय में when entire GVA, overall GDP and important sectors of the economy including industry and services, they witnessed negative substantial growth. This was only agriculture sector which reported a positive substantial growth rate of 3.6%. हमारे देश में करीब 14.5 करोड़ से ज़्यादा ऑपरेशन लैंड होल्डिंग्स हैं. Though the land holding, average holding is very small, it is 1.1 hectare. और इसमें करीब 12 करोड़ के आसपास हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनकी बहुत ही छोटी लैंड होल्डिंग है. You know how self-reliant rural economy is necessary for Atmanirbhar Bharat, and that is why we need to empower our small farmers, especially to be driving force of the economy. You must have seen our hard-working farmers produced food grains to the extent of 305 million ton during the financial year 2021. That is the ever highest figure. And that too in the Corona pandemic period, जबकि बाकी जगहों पे स्थिति बहुत खराब थी. हमारा जो एग्रीकल्चर का कल्टीवेटेड एरिया भी है करीब 20 करोड़ हेक्टेयर के आसपास, जो कि ग्रास क्रॉप्ड है, और नेट सोन एरिया हमारा करीब 14 करोड़ हेक्टेयर के आसपास है. बैंकर्स ने बड़ा अच्छा काम किया. अभी आपने देखा मॉर्निंग सेशन में देयर वाज डिस्कशन, लॉट ऑफ complaints were there against banks, but if you see the ground level credit which was disbursed in agriculture sector, that was highest so far. I think it was around 15.6 lakh crore as against the target of 15 lakh crore. Sectoral share, of course, it has been declining of the agriculture in the total GVA, but last year it slightly increased from 14.9% to 16.3%. This ever increasing agriculture production that need post-harvest revolution, post-harvest management and value addition. We need to create scientific ecosystem and transform the agriculture sector through holistic approach. There was a dilemma between lives and livelihoods during the pandemic year. Agriculture is important है, इसमें कोई दो राय नहीं है. Agriculture is full of uncertainties, full of risk, and more so about small farmer, marginal farmer who are more vulnerable. And that is why we are having this discussion in this panel about the mitigation of the risk and how we can empower our farmers. We have got a very distinguished panel. I will introduce them to you and request them to offer their views, their experience, their plan about it.
In brief, of course, time is a constant. We are slightly running behind of the schedule. So I'll first session chair, Mr. Devesh Chaturvedi, I think he's stuck up somewhere in some meeting. He'll be joining later in this program. I'll first, I will introduce Mr. Satyajit Dwivedi. He is sitting next to me, to my left. He is a Chief Executive Officer, National Center for Financial Education, Mumbai. He has come all the way from Mumbai. I extend a very warm welcome to him. He was with NABARD for over 3.5 decades. He retired recently as a Chief General Manager. He was earlier MD and CEO in NAB Kisan Financial Limited, that is a subsidiary of NABARD. He has got his specialization in POs. Earlier, he was faculty member with the prestigious College of Agricultural Banking of Reserve Bank of India at Pune. He is a postgraduate in science and has also done diploma in microfinance. I will request Mr. Satyajit Dwivedi, because he comes from the financial education area, to express views about National Financial Literacy and Inclusion Survey, as also the national strategy which he was talking in earlier session as a member of the audience. National Strategy for Financial Education focusing on agricultural farmers. Now to Mr. Satyajit Dwivedi, please. Hello. Thank you so much Anil, and thank you AWOC India for having me here. मैं जैसे कि अनिल बताया more than 30 years NABARD में था, and I retired from NABARD as a Chief General Manager. But my good friend Dushwant is here, who will talk about the agriculture risk mitigation aspect and और क्या-क्या हम कर सकते हैं. But since I head the institution called the National Center for Financial Education, which has formulated a national strategy for financial education, जो कि approve है Financial Stability Development Council, Ministry of Finance का. And ये जो strategy है, ये strategy में farmers के बारे में भी हम क्या strategy बनाया गया है, what are the action plans there, I'll share that. And before the strategy was formulated, this was the second strategy. The first strategy was formed in 2013 to 18 period के लिए. उसी time में भी एक survey हुआ था to assess the financial literacy level in the country, different age group wise, different social group wise, different education level wise, different income level wise. ये सब है. Your surveys are available on our website. Those of you who are interested to go into the detail can see our detailed survey as well as the strategy which are available on the website. So coming to the survey first, ये survey जो 2018-19 में हमने किए थे 75,000 rural household and urban households को cover करके all section of 18 to 79 age group तक different languages में 14 different regional languages में हुआ था. तो उसी में जो निकल के आया कि जो everybody now knows since morning we are discussing, the financial literacy level in the country is 27%, whereas the literacy level is 75%. तो 27% क्या मीन करता है in simple terms कि only 27% of the adult Indians understand the fundamentals of savings, investments, planning and budgeting. So simple term में अगर मैं बोलूँगा तो only 27% adult Indians को यही मालूम है. That means where we are not very badly off. BRICS countries are in a mess and we are one of the rare. Even some of the developed nations are doing better. So coming to the survey findings, the key findings that the survey is giving. The survey, I am not going to give you the detailed survey and bore you with that. Those of you who are interested, I will focus only on the session that is on the agriculture and the farmers. The different social groups में क्या key findings है कि farmers का financial literacy level is 31%. जो और एक जो एग्रीकल्चर लेबर्स काम करते हैं उनका फाइनेंशियल लिटरेसी रेट इज ओनली 13%. सो दैट इज वेयर वी आर व्हेन इट इज इन द एग्रीकल्चर, द फार्मर्स लिटरेसी लेवल. एंड व्हेन आई से द लिटरेसी लेवल, द अर्लियर सेशंस आल्सो दे आर सेइंग द लिटरेसी इज मेजर्ड ऑन 3 पैरामीटर्स: द फाइनेंशियल एटीट्यूड, फाइनेंशियल बिहेवियर एंड द फाइनेंशियल नॉलेज. There are various structured questions on which the qualifying marks are given. In the scale of 22, if somebody is scoring 50, then he is considered to be financially literate. So that financial literate concept, if I extrapolate here, so 31% of the farmers are saying that. And उसी में से ये भी देखा गया है कि attitude में उनका scores more than 80% है,
behavior में more than 60% है, but when it comes to the financial knowledge, it is only less than 49% में. So this is where we are. I mean, why I am giving you, those of you who are involved in financial education training and financial education providers जो करते हैं farmers के लिए और different target group के लिए, ये सब ध्यान में रखने से you know that these are the gaps and where you can bridge. So this is one area. So knowledge requires more of the inputs. Like compound interest in the all India level, only 6% of the Indians could understand what is this compounding concept. Simple interest, they are better. So this is one of the statistics that I gave you, which came out from the detailed national level survey. The other statistics is the financial inclusion survey also has been done for the first time now. And also the first time we had a financial, national strategy for financial inclusion. This is the first again 2009 to 2024 strategy, and the education strategy, the second edition 2020 to 25. So inclusion mein what we have done is how you are considered to be financially included. In the savings and the banking related products में उनका एक score दिया गया था, and non-banking products में, और savings and banking related में like savings product and fixed deposit, recurring deposit, उसमें financial inclusion in a score of 3 was much higher compared to the non-banking. So it is only 16% for the agriculture sector as the farmers and only 9% for the agriculture levels. The financial inclusion level is this much. That this is also another very important findings which came out of the survey. The another thing is when we are talking about risk mitigation, what initially and always will come to our mind is the insurance. The insurance penetration for the farmers is, if you take only the crop insurance apart from the livestock and the other property and other insurances, they are also, it's the level of penetration, the what level of conversion is also low. There we calculated then in terms of 3 measures. Awareness, whether the farmer is aware about this crop insurance product or not. Then if he is aware, whether he is holding any crop insurance, if both are true, yes he is aware and he is holding, how many times he has operated this in the last 24 months. So these were the 3 parameters on which we calculated how much is that there. Significant gap is there between the awareness level. For example, in this crop insurance, the awareness level is about 38%, but the holding and operating level is only 6 to 5%. So it's a huge gap. So conversion is not happening. I am aware, but still I have my own reasons not to buy the insurance product. So this is only in respect of crop insurance, and the things are not very different when we talk about the other insurances like the cattle and property and the life insurance. Is the same, the awareness and the huge gap. So these are some of the critical and the key gaps which the survey has thrown up. Based on that survey, a national strategy has been formulated. And this is a 5-year strategy, as I told you, 20 to 25. इसी में क्या किया है? इसमें just to tell you very simply what the strategy we are talking about. I am not going into the detail. Strategy is touching 2 points. One is the dimensions. These are my gaps. So how do I bridge that? So मैं fix कर दिया कि मेरा priorities यही होगा. एक the life stage के ऊपर priority होगा. Children, as everybody are saying, catch them young in financial literacy. Then the young adults and the senior citizens and the women. This is one part of the life stage. This is one dimension which will be prioritized. The second is the geography, which has come out. The states in the eastern region are much less financially. Like UP is 21%, much below the national level of 27%. So UP becomes a priority state for me. Apart from the eastern region, UP is also a priority state. So geographical priority we have done. So the strategy is saying. The third is the sectoral priority. Agriculture, MSME, informal sector like migrant laborers, they form another important dimension of the strategy. So these are the 3 Ds, we say the 3 dimensions. And how we address this, the approach is based on a 5C. The 5C is, the first C is the content. The content you have to develop a relatable and content which is one size fits all content काम नहीं करेगा. Every target group has to have a different kind of inputs to be given to them. Based on that, the NCFE prepares content for each target group, which are approved by all the 4 financial sector regulators. Like NCFE is promoted by the sector regulators. Once that is approved, that means we know these are the financial messages which are given to be given to different target groups. So based on that, the contents are prepared, and content. The second C is the capacity. Build up the capacity, develop the capacity who will provide this training. The financial education providers.
उनका कैपेसिटी बिल्डिंग, if it is an SHG, we build the capacity of the master trainers, we build the capacity of the SACI, the bank SACIs. These are the people who are going to train. So their capacity building is the second C. I mean, even NCFE, we have more than 1,000 certified resource persons who go and do this deliver this financial literacy education programs at the grassroots level, block, village, district, all levels we have. They are all certified by SEBI. They hold a certificate, so they are all empaneled with us. So second C is the capacity. The third is the community. We have realized that financial literacy in a classroom setup may not work. For it having to be more effective, to have more efficacy of the program delivery, it should be a community-led approach. As I mentioned, उनका एक community से pick कीजिए, एक large farmers जो अच्छा काम करता है उसको लेके फिर उसको बोलिए कि आप financial literacy का training उनको दीजिए. So that's a community-led approach. And the fourth C is the collaboration. There has to be a convergence because there are myriad stakeholders. Innumerable efforts and initiatives are taken across the country by not only the regulators, the government, and the banks and the financial institutions, the NGOs, the academics, everybody is playing a role in the financial literacy. They are doing their financial literacy. So what the strategy has said that there should be a proper collaboration. All the roles and responsibilities should be properly aligned so that duplication of the efforts and resources are avoided. So this institution, NCFE, does that at a nationally coordinated level. We try to coordinate all the initiatives and efforts of all the stakeholders. So these are the 5 C's based on that. And the best part of the strategy is, if you find and see, it has a clear-cut, very, very clear-cut action plan. March 21st तक ये 5 C से ये होना चाहिए. March 22 तक ये होना चाहिए. March 23 में ये होना चाहिए. March 23 के बाद एक mid-term survey and review होना चाहिए. Where how far we have progressed. And then March after 5 years again we measure this financial literacy like we measured in 19 vis-a-vis the 13. Now we will measure again 25 vis-a-vis the 20. So that is the strategy. So each thing has been given. कौन क्या करेगा भी उसमें लिखा गया है. Who will do that? So this is the strategy part. So strategy में हमने बोलते हैं जो financial empowerment, it doesn't come in the day one. Financial empowerment is the last stage when farmer हो कोई भी हो, he is able to take informed financial decisions. He knows how to manage his own money. Money matters decision. He is in a better position, more able to take a financial decision. So that is the financial empowerment. Before that, what comes in the financial awareness? वो awareness creation करने के लिए is a financial education, which we call the foundation, the basic education that we give NCFE. We provide that basic. We develop the curriculum and develop the content for basic financial education. But then comes the sector specific. We don't leave it there. Then it has to be built on that. The sector-specific education will be given by the financial sector regulators because they know that best. The mutual fund, where to invest, how to invest, the SEBI will. The banking, how to open an account, how to operate in a UPI, the Reserve Bank will. The third stage we call it the process education. The foundation, then the sector specific, then the process education, where learning by doing. We show them how you do a UPI transaction. We show them how you open an account with the BSE. We show them how you do a transaction in the BSE point in a cash in cash out POS machine. So these are some of the things which. So how then the candidate, I mean the EA is called the financially empowered. So this is the process. So the financial empowerment is the last stage of the financial education initiative. So this is the survey and this is this. But I will come back, I don't know whether you will, about how are they managing this. Why I say this, when we are designing a content, so many things go into the consideration. Similarly, when you are delivering a financial literacy content, there also you need to be relatable to contextual and relatable. If a farmers community have to relate to them, you just can go and talk to them about the concept and come away. So there are financial literacy messages even for the farmers, which the Reserve Bank and the NCFE have done. There are 5 messages they are giving, but we are trying to build on that. The first message is we are saying that you know something called the KCC. So KCC का features समझो, KCC के बारे में हम उनको बोलते हैं कि KCC के advantages क्या है. Then we tell them that okay, prompt repayment. We don't say that you get a incentives. Prompt repayment करने से आपको क्या incentive मिलता है? 3% का जो मिलता है, 4% में वो loan मिलता है. Then we tell them कि इसको store करके रखने से आपको क्या फायदा है? Because agriculture is a very different field. The same education we cannot give them.
The income streams are very irregular. One time income आता है, साल भर उसको खर्चा करना पड़ता है. So the entire initiative and the delivery will be very different. So we tell them, okay, you store it. There is a scheme of the government where warehouse receipt financing मिलता है, same rate पे आपको मिल जाएगा, तो crop loan आपको मिलता है. So वो बोलने के बाद उसको बोलते हैं कि क्या क्या इंश्योरेंस कवर है, क्रॉप इंश्योरेंस है, ये है, कैटल इंश्योरेंस है, आप यूएपी लीजिए. तो फिफ्थ में भी हम एक मैसेज देते हैं उनको कि आपका कैलामिटी के वजह से some reasons which are beyond your control, natural calamity occurred for which you suffered, entire crop suffered. So अनिवार्य डिक्लेयर हो गया. So उसमें से बैंकिंग सेक्टर से आपको क्या बेनिफिट मिलता है? रिशेड्यूल हो जाता है लोन, आपको मोरेटोरियम ग्रांट दिया जाता है, 2 साल के बाद पेमेंट कीजिए. ये सब भी उनको जानकारी होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, इवन द NSS survey also has said MSP. तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 25 क्रॉप्स इंक्लूडिंग द शुगर कैन फिक्स करते हैं, उसी में भी अवेयरनेस लेवल हाईएस्ट इज इन पैडी विच इज लेस देन 50% और जस्ट अराउंड 50%. यू कैन इमेजिन द अदर क्रॉप्स में अवेयरनेस लेवल क्या है. सो दिस इज द overall scenario. So I will come back in case of any question that we try to understand how the farmers are managing risk on their own, or there is only a formal system available that I go and top down बोलो कि आप इंश्योरेंस ले लो, अवेलेबल है, आज बैंक से लोन ले लो, ये अवेलेबल है. Whether this formal institution mechanism is the only way the farmer should be told, and I say that I know everything, you don't know how to manage your risk. So whether we understand that how he is already managing, then I can give them the inputs accordingly. So I'll come back to you, Anil, that at this moment I'll pause. I will also like to give them some message, since so many, I was told, the FPOs and farmers, and at the end of that I will try to tell them what we are doing and what we can do for them. थैंक यू सर जीत जी. साथियों, हमारे साथ करीब 600 मेंबर जुड़े हुए हैं वर्चुअली. उनमें से ज़्यादातर लोगों का जो संख्या है वो FPOs के लोग हैं, कृषक उत्पादक संघ के लोग हैं. तो हम चाहेंगे कि हमारा डिलिब्रेशन ऐसा हो कि वो भी उसको आसानी से समझ सकें और उसका लाभ उठा सकें. क्योंकि हमारे पास नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर साहब बैठे हुए हैं और एक FPO के प्रैक्टिशनर बैठे हुए हैं. इनके पास काफ़ी कुछ बताने को होगा, लेकिन मैं उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि उनसे आने के पहले हमारे साथ चूँकि कपिल देव जी वर्चुअली जुड़े हुए हैं मुंबई से, तो मैं उनका तारुफ आपसे करा दूँगा. उसके बाद फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ अपना अनुभव साझा करें. हमारे श्री कपिल देव जी जो है, ही इज़ अ चीफ बिजनेस ऑफिसर NCDEX मुंबई. ये ही इज़ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट फ्रॉम पंतनगर यूनिवर्सिटी से. MBA भी इन्होंने एग्रीकल्चर में कर रखा है. ये इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं नए प्रोडक्ट्स और नए कैटेगरीज बनाने में, एक्सचेंज में. ही वॉज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर ब्रिंगिंग इनोवेशन टू बिजनेस ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटजाइजिंग मार्केट पेनिट्रेशन अक्रॉस एग्री इकोसिस्टम. तो इनका काफ़ी स्पेशलाइजेशन रहा. और आपने देखा है कि फार्मर्स के लिए जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो मार्केटिंग की होती है. फॉरवर्ड लिंकेजेस में सब कुछ पैदा करने के बाद अगर धान पे 1900 रुपये के आसपास की MSP है और वो बेचता है 1100 रुपये लेके 1400-1500 रुपये के बीच में, तो उसकी पूरी वायबिलिटी खत्म हो जाती है. तो ऐसे समय में तमाम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को देखते हुए NCDEX क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, क्या करेगा, इस संदर्भ में मैं कपिल देव जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्राइस एंड मार्केटिंग रिस्क विच फार्मर्स आर फेसिंग और फाइनेंशियल मार्केट उनको दूर करने में क्या मदद कर सकता है. मैं कपिल देव जी का स्वागत करते हुए उनसे आग्रह करूंगा कि अपने विचार रखें. कपिल देव जी. धन्यवाद सर, एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर सच ए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द current time, which is how farmers can manage their price risk, and especially as sir mentioned about the agri input marketing. देखिए, हम जो वी आर एन एक्सचेंज, डेरिवेटिव एक्सचेंज वायदा बाजार, और वी आर द लीडिंग एक्सचेंज इन द कंट्री, जहाँ पर हमारा 80 to 90% मार्केट शेयर है एग्रीकल्चर वायदा के अंदर. और ऑलमोस्ट 20 से 25 कमोडिटीज के अंदर हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग को प्रोवाइड कराते हैं. जब हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग को देखते हैं, या ट्रेडिशनली जब हम एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को देखते हैं इंडिया के अंदर, तो आप देखेंगे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे डेवलपमेंट हुए. तो मेरे से पहले स्पीकर थे, वो इस बारे में बहुत कुछ बोल भी रहे थे कि बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव ले गए हैं जो फार्मर्स को प्रोटेक्ट करते हैं. और बहुत सारी इवेंचुअलिटी जो होती है ओवर ए पीरियड ऑफ क्रॉप, जब फार्मर सोइंग करता है और उसके लिए हार्वेस्टिंग करता है, चाहे वो क्रॉप इंश्योरेंस है, अभी वेदर इंश्योरेंस भी है, और बहुत सारे इनपुट रिलेटेड सब्सिडीज एंड स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई.
But if after all of this, farmers are not getting the right price, which they assumed when they made a decision of sowing, then the entire 4, 5, 6 months of hard work is gone. And that's the point where role of exchanges and maybe the modern marketing tool starts. I would like to start with a little brief because futures trading in the country is still a new concept. So futures trading globally, it's not a new concept. Almost all the developed countries are having derivatives market. Agriculture commodities derivatives are most traded derivatives, even more than non-agri in certain cases globally. If we go to the global market, developed market like US and any other countries, farmers do play a very, very important role, and they do carry almost 40% of open interest in few of the key derivatives contract like wheat, corn, cotton, and coffee. So this is a global now market, and it is providing all the things which farmers need from the marketing perspective. We as an exchange always has remained in focus to connect farmers with the mainstream agriculture market where they are involved not only in getting the price but discovering the price and be part of the price discovery process. How we connect every dots, I would like to give a little thought on that. So the risk of the farmers starts on the day when sowing starts. In a traditional agri-marketing system, farmers take a decision of choosing a crop based on certain facts. And if we go the normal facts, there are top 3 facts is what price a farmers got when they harvested the same crop at the last season. Maybe what are the current spot market prices, जो अभी के market में क्या price चल रहे हैं. Or the third reference points now has become the government MSP. The minimum support price government decide करती है. इन 3 points को decide करके farmers एक decision लेते हैं कि हमें इस season में, और especially जैसे कि अभी season चल रहा है, सोइंग रबी season की शुरू हुई है, कि कौन सी फसल को हमें लगाना है. और उस एक particular price को कहीं ना कहीं reference price मानकर farmer अपनी crop का decision लेता है और अपनी सारी practices उसके साथ करता है. But उस price की गारंटी फार्मर्स को क्या है? इन केस ऑफ एमएसपी, यस, जहां पर भी फार्मर को एक्सेस है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सिस्टम का, दे आर गेटिंग ए प्राइस व्हिच इज एमएसपी. बट रेस्ट ऑफ द 80% फार्मर आर डिपेंडेंट ऑन द ओपन मार्केट प्राइस, एंड इन 99% केसेस prices are different of what they have thought when they made the sowing decisions. So for all the efforts when the agri input cost they have incurred, machinery cost they have incurred, labor cost they have incurred, harvesting cost they have incurred, other cost they have incurred, is depend only one thing which is open to the market, which is the price. So the profitability is depend on something where farmer has no control as on date, and there is no mechanism to ensure that price. We don't have price insurance scheme as of now in the country. As an exchange, what we do say that the risk management should start from the day when farmer make a decision of sowing. And there is the role, there is the space where futures market has a large role to play. And this I am saying because we have already moved many steps in this direction. So as an exchange, we have been working with the farmers and we have seen a lot of progress happening on that aspect. But I would like to mention a few important points which is worth mentioning here when we are talking about the price list. So we started our efforts 5 years back with the farmers that they should be part of the price discovery and they should have a tool where they can lock their prices and they can ensure their profitability, whatever they do prefer. It's not a forced one, it's the choice. So we started working with FPOs 5 years back. We have a designated engaged farmer engagement group. And we started rolling FPOs, farmer producer organization, as a client of exchange. So now you understand, they are the client. They have the PAN card, they have live trading account, they have demat kind of account, and they have all the financial formalities done, which as a normal client, if we go to the equity market do.
So they are, of course, much ahead of any of the regular farmer or any regular farmer in the market. Now, once they do become the client, they have full right to be part of a national level price discovery platform. What we started, that we started educating them about how futures market can play a role to ensure the price which they are finding right are locked the day they think is right. So we brought them to price risk management concept with the various help which we do initiate, whether in terms of subsidies, whether in terms of discount, whether in terms of education along with NABARD, various other resource institutes. We started farmers getting to the futures market and making them hedge the price risk. So few of the FPOs in the beginning came forward, they locked the price which they wanted, they paid the premium, they did mark to market, and they realized and locked the price which was very comfortable for them. So first thing, the price related risk is gone. They know what kind of profitability they are going to get from the crop which they have sown. They have assurity that this much of the price I am going to get, and they can plan each and everything according to the money they are going to get from the crop which they are sowing. Moving to the next step, we got the approval for the options trading in the derivative market, and again we thought that now we have the best tool for the farmers which provide them price insurance. And we started this concept 2 years back, and last year we started a pilot program where we made few of the FPOs buying put option at the time of sowing itself. So we made them purchase and lock the prices of the crop which they were sowing. So now the point is, at the time of sowing, farmers were locking prices of their harvest. So in the month of November and December, farmers were locking prices of chana and mustard for the month of April. And they paid a premium for that. And the beauty of the product which we have launched is that if prices goes down, farmer will be compensated by the market mechanism. And if prices remain high at the time of harvest, they are free to go to the market and realize the best prices, the high prices. The opportunity of both sides remains with the farmer. They are compensated for the lower prices and they are getting benefit for the higher prices. Now, I will come that how it manage the price. First, the decision itself is informed. Farmer knows that the crop which I am going to sow is going to give me this much of return. Point number two, the cost of premium is always calculated in the cost of production, so they know per unit return from the options available to them. So now farmer can decide, looking at the futures market, that these are the 4 crops which I want to sow, and these are the prices of those crops at the harvest time. This is the premium I need to pay to lock those prices, and then I can do the calculation and how much return I am going to get. And once farmer knows that, he can plan the entire crop. It's a huge behavioral changes. It's not putting money into the crop where I don't know how much money I'm going to get. It's putting the money into a crop when I know how much percentage of return I'm going to get out of it. And it's like, planning our EMI after knowing how much is our income. And that is something which we have built into the farming ecosystem. We saw around 41 FPOs and 3,000 farmers coming forward and started trading that options. And we have closed that. We have subsidized that premium with the help of regulator. Around 1 crore of premium we have paid on behalf of farmers. And now the good part is that the farmers itself are now coming forward and using this tool as a price insurance to lock their crop. Coming to the second aspect of this, if income of the farm or farming practices is protected, all of the stakeholders who are associated with the farmers are protected. The banking system, who have extended loan, they have exposure with the FPOs of the farmers. They know that these farmers are protected, their crops is protected, their price is protected, their profitability is protected. The comfort level automatically goes up because they know that all the exposure is protected in a scientific way using derivatives market. So that is first thing. Second, behavioral changes we have seen. Selection of crop has become more scientific. They are taking a calculated call, understanding the return, and not by only analyzing what they have got last year, but they are making a call what they are going to get next year and looking at day 1. This is about the price risk.
But another important aspect of agriculture market remains the infrastructure side. And we know, when I was doing my graduation in 2000, साझा करने का प्रयास करें डॉक्टर चौहान। सभी को नमस्कार। और अनिल ने जैसे बताया कि अपने पहले बोधन में वो बोल रहे थे, जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि खेती सबसे बड़ा सेक्टर है। कोविड के टाइम जो हमारे कृषक लोगों की कर्मठता थी, जो रिसिलेंस था, जिसकी वजह से एक वही सेक्टर है जो पॉजिटिव ग्रोथ में है। खाद्य सुरक्षा पूरे देश को, और अभी तो भारत का जो खाद्यान्न है वो देश के बाहर भी लोगों का पेट भरता है। और सबसे बड़ा सेक्टर है जिसमें मन से या बेमन से रोजगार में लोग लगे हुए हैं। अब नाबार्ड का जहाँ तक सवाल है, और जो कि कॉन्क्लेव फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड है और वित्तीय साक्षरता या वित्तीय जागरूकता इससे रिलेटेड है, तो एक किसान का जो रिस्क है, मुझे नहीं लगता कि खेती से ज़्यादा कोई और रिस्की काम पूरी दुनिया में है। क्योंकि हवा आपके कंट्रोल में नहीं है, सूरज आपके कंट्रोल में नहीं है, बारिश आपके कंट्रोल में नहीं है। खुले आसमान के नीचे अगर कोई आर्थिक गतिविधि की जाती है तो वो खेती है। तो केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में ये सबसे ज़्यादा जोखिम भरा काम है। लेकिन ऐसा काम है जो करना है वो करते रहें लोग, और आगे भी करते रहेंगे। तो रिस्क मिटिगेशन, अगर मैं किसान की वित्तीय जोखिमों की बात करूं तो किसान का और भारत के किसान का वित्तीय जोखिम तो उसी दिन शुरू हो जाता है ना जिस दिन उसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। और उसके बाद उस 1 हेक्टेयर से कम जमीन में जो मृदा है, जो सॉइल है, उसकी क्या हेल्थ है वो भी हम सबको पता है। तो मेरा एसेट जो है, जो मेरी अस्थि है, किसान के लिए तो अस्थि खेत है बस। अगर उसकी साइज और उसका स्वास्थ्य, उसकी हेल्थ कमज़ोर है तो पहले दिन से ही वो वित्तीय जोखिम में है। और फिर उसके बाद आता है कि उसमें एक बीज डालना है, तो कब, कितना, कौन सा बीज कहाँ मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा, और उसकी क्या गारंटी है कि जो पौध आएगी, जो फसल आएगी वो बेहतर होगी। ये सारा जोखिम को लेके वो बीज लाता है और बीज बोता है। फिर पानी और खाद, उसके अपने जोखिम है। पानी है तो संचय नहीं है, पानी नहीं है तो लाएं कहाँ से, और बिना उसके खेती हो नहीं सकती। खाद में भी वही है। जब देश को जरूरत थी, लोगों का पेट भरने की जरूरत थी, हरित क्रांति लाने की जरूरत थी, तो शायद बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन वर्क किए बगैर किसानों को बस ये बोला गया कि मुट्ठी भर से लो और डालो यूरिया। तो ठीक है, वो शॉर्ट टर्म में गेन हुआ और हरित क्रांति की वजह से देश में खाद्य सुरक्षा आई। लेकिन उसका नतीजा अब सभी प्रदेश, खास करके पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ पर रासायनिक खाद का हमने बिना सोचे समझे और जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उपयोग किया, तो उसके नतीजे भी आपके सामने हैं। और फिर भी वो वाली भी खाद टाइम पे मिले ना मिले, कितने पैसे पे मिले, तकनीक किसान तक पहुंचती नहीं है, और अगर पहुंचती है तो बहुत महंगी होती है। और फाइनली उस पर अपने अस्थि पे, अपने एसेट पे काम करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है, अनिल जी ने बताया था भी कि 15.5 लाख करोड़ एग्रीकल्चर सेक्टर या प्रायोरिटी सेक्टर
जो है उसमें, और बहुत सारी नीतियां हैं भारत सरकार की, रिजर्व बैंक की, नाबार्ड की, कि बैंकों से वो पैसा जाना चाहिए और मिलना चाहिए, मिलता भी है, लेकिन कितना मिलता है ये कृषक ही जानता है। मैं बस इतनी सी बात कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ किसान हैं और हमारे ऑपरेटिव केसीसी, ऐसे केसीसी जो चल सकते हैं, जिन पे लेन देन हो सकता है या हो रहा है, वो करीब लाख सवा लाख ही, लाख 1.25 करोड़। तो 50% 40% किसान तो उत्तर प्रदेश में जिसके पास केसीसी नहीं है या ऑपरेटिव केसीसी नहीं है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का, वित्तीय साक्षरता का एक बड़ा पोर्शन हमारा ये होना चाहिए। और जैसे सत्यजीत अभी बता रहे थे कि जो सर्वे हुए हैं, तो उसके हिसाब से किसानों में फाइनेंशियल जो सर्वे हैं उसमें उनकी रेटिंग बहुत बुरी नहीं है। और थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाले पैनल में जो रिलायंस और ऐसा बैठे हैं, वो भी एक बहुत ज्वलन चीज़, उन्होंने 2 चीज़ें बोली थी कि हम लोग इतने जागरूक हैं, उसके बाद भी उनको लग रहा था कि अगर मुझे पता होता तो मैं कहीं और इन्वेस्ट करता, 3 गुना होता। तो जो मैं समझता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में और जिस पे नाबार्ड काम करने की कोशिश कर रहा है, वो ये है कि वित्तीय साक्षरता, वित्तीय प्रबंधन से ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे वित्तीय अधिकार क्या है। कम से कम अगर इतनी बात मेरे ग्रामीण क्षेत्र में और कृषकों को पहुंच जाए कि उनके अधिकार क्या है। कुछ दिनों पहले मैं अपने गांव गया, और चूंकि सीजीएम बनने के बाद पहली बार और बहुत सालों बाद मैं अपने गांव गया, तो मेरे गांव के बहुत लोग आ गए। यकीन मानिए, ज़्यादातर लोगों ने मेरे को ये शिकायत करी कि सर, जेएलजी में हमने लोन लिया था, एक जेएलजी ग्रुप में मैंने अपना लोन अदा कर दिया है और मैं दूसरे साथी को ये भी पीछे पड़ा हूं कि अदा कर दे, लेकिन मुझे अपने लोन का भी नोटिस नहीं दे रहा है। इतने दिनों से मैंने इतनी इंस्टॉलमेंट्स दे दी, लेकिन वो बोलते हैं, वो जब हम एक मुश्त समझौता करने जा रहे हैं तो बोलते हैं कि आपका टोटल प्रिंसिपल अभी वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है और उस पर मैं एक मुश्त समझौता नहीं कर सकता, उतना तो देना ही पड़ेगा, ये रिजर्व बैंक का आदेश है। तो नाबार्ड में 30-35 साल नौकरी करने के बाद भी मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जिस व्यक्ति ने अपनी 100 में से 70 इंस्टॉलमेंट दे दी, उसका प्रिंसिपल अमाउंट कैसे कम नहीं हुआ। तो ये जो वित्तीय अधिकार हैं हमारे कृषकों के, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के, उस पर बहुत सारा काम करना है। तो 2 मुख्य धाराओं में नाबार्ड काम कर रहा है। एक वो सारे जोखिम जो मैंने आपको बताए थे, जोत की आकार से लेके बिजली, पानी, खाद, बीज तक। और अब तो एक और बड़ा जोखिम है जो जिसको हम क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं। बारिश होती नहीं या इतनी तेज होती है कि सब नष्ट कर देती है। नवंबर का आधा आ गया, लखनऊ में बहुत सारे हम में से लोग शर्ट में बैठे हुए हैं। तो ये जो मौसम में बदलाव आ रहे हैं, उसकी वजह से खेती पे बहुत दुष्प्रभाव आ रहे हैं। तो दोनों हिस्सों में, एक जिसको हम कहते हैं कि सॉफ्ट, और जिसमें वित्तीय अधिकार, वित्तीय जागरूकता, वित्तीय समावेशन, ये सब को लेके नाबार्ड और रिजर्व बैंक में फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड है। और सत्यजीत जैसी जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को नाबार्ड, सिडबी और भारतीय रिजर्व बैंक इसीलिए प्रमोट कर रहा है कि इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो वित्त से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचे। नाबार्ड डायरेक्टली भी बैंकों के जरिए, जहाँ वो हमारे वाणिज्यिक कॉमर्शियल बैंक हो, स्टेट बैंक जैसे, या कोऑपरेटिव बैंक हो, जिला सहकारी बैंक,
या ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, इन सब के जरिए बहुत सारे वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम कराते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स बैंक में खुलवाते हैं, वहाँ पर कंसल्टेंट्स टाइप के लोग बैठते हैं। नाबार्ड की खुद की ट्रेनिंग संस्थाएं हैं, बैंकर ग्रामीण विकास संस्थाएं जैसे हैं, RBI का कैप है। यहाँ पर भी हम NGOs को, बैंकर्स को, बैंक से जुड़े हुए जो हमारे BCs, BFs होते हैं, उन सब की ट्रेनिंग देते हैं और फिर उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आगे गांव में जाके इन सब चीज़ों को करें। और अभी तो IT का ज़माना है, तो अभी वित्तीय साक्षरता के साथ साथ अब तो सारे बैंक, करीब कोऑपरेटिव बैंक भी CBS पे आ चुके हैं और पैक्स के कंप्यूटराइजेशन की बात हो रही है। तो आने वाले टाइम पर एक और आयाम जुड़ेगा हमारी वित्तीय साक्षरता में और वित्तीय समावेशन में कि IT रिलेटेड बैंकिंग सर्विसेज का भी पूरा ज्ञान ग्रामीण क्षेत्र में तमाम लोगों को प्राप्त हो, ताकि उनकी चीज़ें सुरक्षित रहें। जहाँ तक बाकी चीज़ों का सवाल है, ज़मीन से लेके और खाद तक, तो शायद जोत का जो आकार है उसका एक जो चीज़ नाबार्ड और भारत सरकार के ज़रिए कर रहे हैं, वो एग्रीगेशन ऑफ लैंड्स, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो उतना नहीं चल पाया हमारे देश में, लेकिन FPOs के जरिए अगर 1000, 2000, 3000 किसान एक साथ अपनी कंपनी में आ जाते हैं, तो अगर 1 एकड़ के भी किसान हैं तो वो कंपनी 3000 एकड़ की हो गई। तो इस तरह का एक कलेक्टिवाइजेशन, एक एग्रीगेशन, ये FPOs के जरिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के फेडरेशंस के जरिए, क्लस्टर्स के जरिए, ना केवल खेती के क्षेत्र में लेकिन खेती से जुड़ी जो अन्य गतिविधियाँ हैं, चाहे वो दुग्ध हो, पोल्ट्री हो, मत्स्य पालन हो, फिशरीज जिसको हम बोलते हैं, इन सब में हम ये कलेक्टिवाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। और ये आप मान के चलें कि किसी भी हालत में हमारे जो छोटे और मझोले किसान हैं, अगर वो केवल खेती करके वित्तीय जोखिम से बाहर आ जाएंगे तो वो संभव नहीं है। इसलिए उनको खेती से जुड़ी जो अन्य गतिविधियाँ हैं, जिसमें डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज जैसा मैंने आपको बताया, या दस्तकारी, ये सब उनको करनी पड़ेंगी उस खेती के साथ, अपने खेत के साथ जोड़ के। और जहाँ तक क्लाइमेट चेंज का सवाल है, मौसम का सवाल है, नाबार्ड के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसको हम एक जलागम वाटरशेड परियोजना बोलते हैं और एक ट्राइबल डेवलपमेंट फंड के जरिए हम ट्राइबल फैमिलीज़ के लिए, जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनके ज़मीन और पानी से जुड़े हुए ये दोनों जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं। और इसमें हम मिटिगेशन और एडेप्टेशन दोनों की बात करते हैं। और साथ ही साथ इन प्रोजेक्ट्स में नाबार्ड का कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे जलागम का हो, चाहे ट्राइबल डेवलपमेंट फंड का हो, या जो लाइवलीहुड एनहांसमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, LEDP जिनको बोलते हैं, आजीविका से रिलेटेड, इन सब में वित्तीय साक्षरता का कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स है, ताकि उनको अपने अधिकार पता चले, ताकि उनको अपने दायित्व भी पता चले कि वित्त से संबंधित मेरे कुछ दायित्व भी हैं। ये नाबार्ड कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ जो संस्थाएं इन हमारे कृषकों के साथ जुड़ी हैं, खास करके बैंकिंग संस्थाएं, कोऑपरेटिव, ग्रामीण बैंक, इन सब का इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट और इनको और अधिक मजबूत करने में भी नाबार्ड रिफाइनेंस के जरिए भी और ग्रांट बेस जो हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं उनके जरिए भी, और अपना जो हमारा निरीक्षण सुपरविज़न होता है, जो बेसिकली स्टैच्यूटरी है, संवैधानिक कार्य हम करते हैं, इन सब के जरिए इन संस्थाओं को मजबूत करना नाबार्ड का एक मैंडेट है। तो नाबार्ड का अगर मैं एक लाइन में बोलूँ कि मेरा संस्था का जो टोटल मैंडेट है, जो टोटल उद्देश्य है, वो कृषि, कृषक और ग्रामीण क्षेत्र में सारे जोखिमों को कम करके, ज़ीरो रिस्क हो नहीं सकता किसी चीज़ में, जोखिमों को कम करके, जोखिम प्रबंधन को दुरुस्त करके ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भरता गांव में लाने की नाबार्ड की कोशिश है। और उसी के बाद जब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि देश आत्मनिर्भर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके कोई भी प्रश्न होंगे, क्वेरीज होंगी, डिसएग्रीमेंट्स होंगे, उन सबका स्वागत है। थैंक यू चौहान साहब।
नाबार्ड जैसे बृहद क्षेत्र जिसमें वो काम करता है उसकी तमाम गतिविधियों को आपने बड़े संक्षिप्त में और बड़े अच्छी भाषा में, सरल भाषा में आपने बताया। खास करके हमारे ऑडियंस और हमारे जो वर्चुअली जुड़े हुए हैं हमारे पीओ के मेंबर, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। आपको धन्यवाद देने के साथ ही मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे साथ श्री मृणाल अग्रवाल जी हैं और इनका मैं परिचय आपसे करा दूँ कि ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं देवभूमि एग्री क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड आगरा से। और ये हर्ष का विषय है कि एक पीओ का प्रैक्टिशनर जो कि सक्सेसफुल है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं 6-7 हज़ार एफपीओ जो देश में काम कर रहे हैं, नाबार्ड का बहुत बड़ा उसमें रोल रहा है, एसएफईसी का रहा है और भी गवर्नमेंट एजेंसीज का रहा है। बहुत कम जगहों पे बहुत अच्छी सफलता मिली है। ये एक उसमें से सक्सेसफुल आदमी है। ये बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर है और काफ़ी इन्होंने अनुभव प्राप्त किया है एजुकेशन मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज़ में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, टीम बिल्डिंग, मार्केट रिसर्च, सोशल डेवलपमेंट में। और उत्तर प्रदेश का पहला जो प्राइवेट सेक्टर में मंडी का कुछ कार्य करने को मिला है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको अलाउ किया है, प्राइवेट मंडी सब मार्केट यार्ड। और ये बड़ा हर्ष का विषय है। इन्होंने फार्म एग्रीगेशन पे काफ़ी काम किया है, B2B, B2C मॉडल्स में, और किसान सेवा केंद्र भी चलाते हैं। मृणाल जी, आपका स्वागत करते हुए मैं आपसे अनुरोध करूँगा, मैं जानता हूँ कि फील्ड प्रैक्टिशनर के पास कितना अनुभव होता है साझा करने के लिए, लेकिन समय की नाजुकता को देखते हुए, समय की सीमा को देखते हुए बहुत कम समय में कितनी अच्छी तरह से आप अपनी बात को रख सकते हैं, इसके लिए मैं आपको इन्वाइट करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर टीम ऑफ अवोक इंडिया जिन्होंने इतना अच्छा शो पुटअप किया, एंड ईच एंड एवरी मेंबर जिसने फॉलो अप करके आज यहाँ इस सभा को शामिल होने लायक बनाया। थैंक यू सो वेरी मच। इसके अलावा आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय heartiest congratulations to the organizer Shri Dwivedi Sahab and the mother of the program Mrs. Dwivedi. Thank you so very much. You have made the entire show happen in a splendid way. And I would request you all to please have a big round of applause for both of them. So if it would not have been for them, तो शायद आज हम लोग इस पूरे टॉपिक पे डिस्कस नहीं कर रहे होते। Thirdly, जो क्रिएटिव फीलिंग आज सुबह के प्री लंच सेशंस में हमारे को दर्शाई गई, उनसे मैं बहुत कुछ रिलेट करते हुए ये बता सकता हूँ कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी जितना सुपरफिशियल दिखता है उतना है नहीं। ये बहुत ही इन डेप्थ टॉपिक है और ये जितना डीप है उसकी जानकारी उस निचले तबके के वर्ग के उस इंसान को आती है जिसके हाथ में पैसा नहीं होता। शायद उन बच्चों को आज जहां हर चीज़ प्लेटर पर मिलती है उनको इसके बारे में बिल्कुल हवा नहीं लग पाएगी, लेकिन जो बच्चे पॉकेट मनी से ही अपनी पढ़ाई खींच रहे हैं या जिनके घर में सीमित साधन हैं, उनको शायद फाइनेंशियल लिटरेसी का ज्ञान हमसे ज़्यादा होगा। Thirdly, I would like to thank the entire team and I feel so privileged कि आज इतने distinguished panel के बीच में मुझे मौका दिया गया। I will also admit कि नाबार्ड वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमको सींचा। आज हम इस काबिल हो पाए हैं कि I am able to share the same dais with sir. Thank you so very much, sir. I am deeply touched for that. And आज दिव्य भूमि एग्री क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी की ओर से मैं सीईओ की भूमिका में आज मेरे सभी किसान भाइयों ने और हमारे जितने भी प्रतिनिधि मंडल के लोग हैं मुझे भेजा है, और आज मुझे ये गर्व महसूस होता है कि जो सपना नाबार्ड और भारत सरकार ने किसानों के हित में सोचा था, शायद उसकी पहली सीढ़ी हम लोग चढ़ चुके हैं। जब हम लोग गाँव के परिवेश में काम करने गए तो हमने ये महसूस किया कि उत्पादन समस्या नहीं है किसान की, सबसे बड़ी समस्या किसान की है मार्केट प्रोवाइड करवाना। क्योंकि जब वो पैदावार कर लेता है तो कहाँ बेचे, ज़्यादा पैदावार कर लेता है तो उसका माल का दाम गिर जाता है, मंडी में रेट कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमें सबसे पहली चीज़ पता लगी कि मंडी वो जगह है जहाँ ये लोग जाते हैं। अब जब मंडी में पहुँचे तो पता चला वहाँ तो खरीदार ही नहीं है,
बिकवाल खरीदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि मंडियां बड़ी आड़ी तिरछी जगह सरकार ने बनाई हुई हैं और कहने के अनुसार तो ये है बात कायदे की कि हर 5 किलोमीटर पर एक किसान मार्केट बना हुआ होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? लखनऊ में ही अगर आप बात करें तो कितनी मंडियां होंगी? मैं तो खैर आगरा से हूँ, वहाँ लगभग 3-4 मंडियां हैं जहाँ प्रमुखता किसान जाता है। तो देखने में सबसे पहली बात यह है कि किसान की बिकवाली के साधन नहीं है। अब किसान बेचता कैसे है? ट्रैक्टर में लोड करके जाए तो उसका माल भाड़े का वापस लौटने का खर्चा नहीं है। कारण कि रेट अगर ज़्यादा तो लगेगा नहीं, कम ही लगेगा। तो बहुत सी समस्याओं को देखते हुए समझ में आया कि देयर इज अ कंप्लीट कोटरी ऑफ पीपल हु ऑपरेट इन द विलेज। गांव का किसान अपने किसी कच्चे आड़तिये को फोन करके बोलता है कि इतना माल पैदा हो गया है, बता कहाँ लेके आऊं। अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो किसान भाई पीछे बैठे हैं, आप मेरे को बता सकते हैं। अब वो जो व्यक्ति माल खरीद रहा है, जो उनका एक तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो बहुत पुराना इंसान है, बचपन से जुड़ा हुआ है। शायद खाद के लिए, बीज के लिए और बहुत सी उसकी पारिवारिक समस्याओं के लिए पैसा भी वो उसे देता है। तो कहने का मतलब क्या निकल कर आया कि जो पुराना बैंक है वो तो वही आदमी है, जो इनफॉर्मल बैंकिंग कर रहा है गांव में, वो तो वही कच्चा आड़तिया है। हमारे बैंक्स वहां कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं। दूसरी चीज, जब वो कच्चा आड़तिया माल खरीदता है तो निश्चित तौर पर अपना भला वो करेगा और वो अपना भला थोड़ा ज्यादा कर लेता है। इसका कारण क्योंकि वो बहुत सी रिस्क लेकर काम करता है। माल बिकवाने का व्यापारी को देने का जिम्मा, पैसे जो दिए हैं उसको वापस लेने का जिम्मा, तो बहुत सी ऐसी रिस्क हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि जब एफपीओ बना तो एफपीओ एटलीस्ट इन सारे कामों को ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सकता है। जहां मार्जिन ज्यादा लिए जा रहे हैं वहां मार्जिन सुनिश्चित करके काम कर सकता है, जिससे कि किसान को कहीं ना कहीं कुछ रिलैक्सेशन मिले। जहां मशीनरी की बात आती है तो एफपीओ को आज राज्य सरकार के द्वारा फार्म मैकेनाइजेशन की, कस्टम हायरिंग की काफ़ी योजनाएं हर 3-4 महीने में दी जा रही हैं, जिसका फ़ायदा हम लेकर किसानों को किराए पर वो ट्रैक्टर और उपकरण हम देते हैं। लैंड लेवलर है, ट्रैक्टर है और भी हैरो है, बहुत सी चीज़ें ली हैं। तो ये सब चीज़ों से, फार्म मैकेनाइजेशन से किसान का जो पैसा किस में खर्च होता था, जो पैसा खर्च होता था ऑलमोस्ट लेबर में, क्योंकि अब देखिए फार्म लेबर बहुत कम हो गई है, बच्चे जो हैं पलायन कर गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि किसान का बेटा किसानी नहीं कर रहा है। और इसके अलावा मैं बहुत से ऐसे व्याख्या हमारे बीच में आए काम करने के दौरान जो मैं आपको बताता, लेकिन मैं बस आज इस मंच से यही बोलूँगा कि किसानों के लिए बहुत सी ट्रेनिंग्स नाबार्ड और बहुत से वित्तीय संस्थान बैंकों को देते हैं, जो कि जाके किसानों के बीच में उनको समझाते हैं। हम ये सर गुजारिश करेंगे आपसे कि अगर उनको डायरेक्टली किसानों को या हम किसान ग्रुप्स को दे दिया जाए तो शायद हम उनको बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली उन तक पहुंचाने की एक आपसे वादा कर सकते हैं, क्योंकि हम उनकी रोज इंश्योरेंस की प्रॉब्लम को देखते हैं। केसीसी में उनका कितना पैसा कट गया वो कभी आकलन नहीं करते और कितना आ गया उसका भी कभी आकलन नहीं करते। तो अगर हम सिर्फ इतना ही सिखा दें एक सेशन में उनको कि कितना कटेगा और कितना आएगा, तो शायद किसान की पहली इंश्योरेंस की सीढ़ी वो चढ़ चुकेगी। दूसरी, कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे कि हम ही ने उनको डाई यूरिया का उपयोग करना सिखाया। तो एफपीओ बनाने के बाद भी बहुत सी बार ऐसा दिखता है कि हमको खुद इनपुट्स नहीं मिल पाते हैं। हालांकि हम आज खुद बड़े डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं, लेकिन तब भी मार्केट में इतना बड़ा नेक्सस है जिसको कि शायद हम आज भी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पूरी सप्लाई चेन जो है, इसको सुधारने में अभी और समय लगेगा। लेकिन क्योंकि एफपीओ मूवमेंट आपके द्वारा और भारत सरकार के द्वारा बहुत ही प्रबल तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम इसको
अच्छे रूप में किसानों के हित में प्रभावी करके दिखाएंगे। और मैं बस इतना ही बोलूँगा कि इस देश में नए विचारों का संचार अब चालू हो गया है और वो नए विचार क्रियान्वित करने का जिम्मा आज हम जैसे लोगों पर है, एफपीओज पर है। जो एसएचजी ग्रुप्स अच्छा कर रहे हैं वो भी एफपीओज में आज जुड़ चुके हैं, महिलाएं जो विमेन एम्पावरमेंट में आगे बढ़ गई हैं वो भी जुड़ चुकी हैं। और हम इसका पूरा श्रेय नाबार्ड और हमारे और सहयोगी लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको देते हैं, क्योंकि शायद उन्हीं की वो रहा है जिसको हम पकड़ के आज चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ हम थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल जी। मैं ऑर्गेनाइजर से केवल 1 मिनट का मोहलत और चाहूँगा। मैं समझ रहा हूँ समय सीमा का प्रबंधन उनके लिए मुश्किल हो रहा है। लास्ट में मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक्शन पॉइंट के रूप में 10 या 15 सेकंड, आप अक्सर टीवी डिबेट में देखते होंगे, हालांकि बड़ा मुश्किल होता है 10-15 सेकंड में अपनी बातों को कहना। हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड मेंबर हैं या दूसरे लोग भी, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आपके जो और भी विचार हैं आप चाहें तो मेल से बाद में भेज सकते हैं। हमारे जो पब्लिकेशंस करेंगे एक्शन पॉइंट्स, हमारे द्विवेदी जी या योग इंडिया, वो उसमें उसको संग्रहित कर लेगा। एक्शन पॉइंट के रूप में मैं दोबारा आना चाहूँगा 10 या 15 सेकंड में। कपिल देव जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या हम लोग एक्शन पॉइंट इस संदर्भ में ले सकते हैं? वोट करे तो दिया या वो प्रपोजल लेके आओ, देंगे 100% देंगे कंपोनेंट है ट्रेनिंग का। दूसरा जो मेजर काम अभी हम नाबार्ड से जो हम कर रहे हैं वो आज ही अभी सुबह 5 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है यूपी कोऑपरेटिव बैंक को कि 27 जिलों के हर पैक्स में हर महीने अगले 4 महीने तक वित्तीय साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो नाबार्ड कर सकता है। और कॉर्पोरेट लेवल पर तो हमारा एक्शन पॉइंट बहुत सीधा सिंपल है। अनिल जी भी जानते हैं, द्विवेदी जी भी जानते हैं कि हमारे जितने टारगेट हैं वो इससे रिलेटेड ही हैं कि फार्मर्स को मिटिगेशन कैसे करें। जो एक छोटी सी बस एक चीज़ ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि भाई बिल्कुल ये कोई भी हम में से कोई भी जो शूट टाइम हम सब यहाँ बैठे हैं, ये बिल्कुल मत समझिए कि जो किसान है या गांव में रहने वाले जो हमारे लोग हैं उनको वित्तीय प्रबंधन नहीं आता। वो हमसे बहुत बेहतर वित्तीय प्रबंधक हैं ना, तो उनकी ज़िंदगी चलती नहीं। उनको कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी, वो अलग बात है कि जैसे सब्सिडी देर में रिलीज़ होती है तो जब तक रिलीज़ नहीं होती बैक एंडेड सब्सिडी में उनके ऊपर ब्याज लगता रहता है। ये इस तरह की कुछ चीज़ें या किसी सी जो चीज़ें उनको नहीं पता है, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में करके और उनके वित्तीय अधिकार और उनका वित्तीय जो जोखिमें हैं उनको कम करने में हम अपनी तरफ से पूरा जो भी भरोसा दिला सकता हूँ पैसे के लिहाज से और फैकल्टी के लिहाज से, रिसोर्सेज के लिहाज से, वो है आपके पास। धन्यवाद चौहान साहब। सत्यजीत द्विवेदी से मैं आग्रह करूंगा कि 15 सेकंड में क्या एक्शन पॉइंट या टेक अवे वो बताना चाहेंगे। मेरा पास 2 एक्शन पॉइंट है इसी वर्कशॉप से, क्लिप से मिला है। एक तो कोलैबोरेशन जैसे आउट इंडिया फाउंडेशन है, वो हमारे साथ NCERT के साथ काम करें, आपके कैपेसिटी बिल्डिंग अगर चाहिए तो कर सकते हैं। कंटेंट हमारा कंटेंट का कोई कॉपीराइट नहीं है, हमारे कंटेंट आप यूज कर सकते हैं। वो एक हमारा साइड से है। और दूसरा है कि अगर आप लोग करते हैं हमारे साथ कोलैबोरेशन में, सो दैट डुप्लीकेशन रिसोर्सेज का अवॉइड होता है। तो एफपीओ भाई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, उनके लिए मेरा ऐसा कहना है कि आपके पास 200-300 फार्मर ऑलरेडी हैं, सो इट्स ए गुड टारगेट ऑडियंस फॉर NCERT। आपका अगर ज़रूरत है हमको एक डिमांड मेल पे कर दीजिए। हमारा जो ट्रेन प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन है, हम आपके लिए नेचुरलिटी का प्रोग्राम विल बी वेरी हैप्पी टू डू इट। हमारे पास जो कंटेंट है और आपका ट्रेनिंग करने के लिए विल डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट, वी डोंट चार्ज अ सिंगल प्राइस। ऑल आवर प्रोग्राम्स आर डन फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये दोनों हमारा साइड से। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यजीत जी। मृणाल जी, आप कुछ बताना चाहेंगे 15 सेकंड में? मैं तो बस इसी बात के लिए फिर से शुक्रगुजार रहूँगा कि आज ये मौका मिला हम सभी को। और टेक अवे पॉइंट के रूप में हम बस इतना ही बोलेंगे कि ये वित्तीय साक्षरता एक तरीके से जीवन की साक्षरता है, इसको कभी भी हल्के में ना लें। अपना डे बुक
या अकाउंट्स ज़रूर मेंटेन करें। मैं किसानों को बहुत बार बोल चुका हूँ, आप जो भी बोते हैं और जो भी पाते हैं उसका एक लेजर ज़रूर बनाएं। शायद आगे आने वाले टाइम में जब हम पॉजिटिव और सक्सेसफुल फार्म की स्टोरीज दिखाएंगे तो किसानों पर उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल जी। अब कपिल देव जी शायद जुड़ गए हैं, अगर आप चाहें तो 10-15 सेकंड में कोई एक्शन पॉइंट की तरफ अगर आप इशारा करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी वो टाइम आ गया है कि जो फार्मर्स है और जो एफपीओज है उनको आत्मनिर्भर होने की जरूरत है प्राइस डिस्कवरी में। और अभी इंडियन जो फाइनेंशियल मार्केट है वो सारे टूल उन लोगों को प्रोवाइड कराता है कि वो खुद डिसाइड कर सके अपने प्राइस को, वो खुद डिसाइड कर सके अपने फसल को, और किसी के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी ना रहे। जैसे कि अभी मेरे से पहले वाले बोल रहे थे कि मंडी में जाके सिर्फ सेलर होता है, बाहर नहीं होता है। बट अगर हम एप्रोप्रिएट टूल को यूज करेंगे जो कि आज ग्लोबली यूज होते हैं और इंडिया में भी फार्मर्स ने यूज करने शुरू किए हैं, शायद इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक हम सोल्व कर सकते हैं। यस, बहुत सी अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। नाबार्ड इज ए वेरी एक्टिव पार्टनर जो हमारे साथ जुड़कर एफपीओ को प्रोत्साहित करते हैं इस मार्केट से जुड़ने के लिए, और हम तत्पर हैं और भी ज्यादा एफपीओस के साथ कनेक्ट होने के लिए। और अगर आप लोग और जितने भी ऑडियंस वहां पर बैठी है, किसी को भी फ्यूचर्स मार्केट, वायदा बाजार और उसके क्या फायदे किसानों को है समझने की जरूरत है तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या अवोक के थ्रू जो कि हमारे बहुत ही क्लोज पार्टनर है इन सब एफर्ट्स में, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल देव जी। अब हम लोग ये सेशन यहीं पे हम लोग फिलहाल समाप्त करते हैं। हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स थे, डॉक्टर चौहान, मृणाल जी, सत्यजीत जी, कपिल देव जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यूथ इंडिया फाउंडेशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से कि उन्होंने एक मंच प्रदान किया जिसपे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आ सके और काफ़ी अच्छा डिस्कशन उन्होंने किया। उम्मीद है कि इसके पब्लिकेशन के साथ डिटेल्स हम सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो ऑनलाइन जुड़े हैं या फिजिकली यहाँ पे उपस्थित हैं उन सभी को मेल के जरिए ज़रूर ही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। मिनट का समय लूँगा मैं सर, प्लीज़ आप लोग। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जैसा कि रोल मॉडल में खड़ा कर सकते हैं अपनी फैसिलिटेशन से और अपनी जो मदद से, तो उसके बारे में 1 मिनट में हमारे केन द्विवेदी जी हैं जो एग्रीकल्चर में काफ़ी एफपीओ साथ काम कर रहे हैं, और कुछ एफपीओज यहाँ आए हैं जिनके साथ में हम चाहेंगे कि जो एमओयू उन लोगों से बात हुई है कि उनको हम क्या बातें बता करके किस तरह से उनका एक मॉडल तैयार कर सकते हैं उसके बारे में केन को बताना चाहेंगे। इन्वाइट कर लेते हैं तो हम लोग अपना एमओयू एक्सचेंज कर लेते हैं in presence of the August panel today. Panch Bioenergy Farmer Producer Company Limited, Devu Naturals Bioenergy Farmer Producer Company Limited, Lakshuday Organic Producer Company Limited, Parijanya Bioenergy Farmer Producer Company Limited, Shivpatar Sri Ram Singh Bioenergy Farmer Producer Company Limited. all the Sacred हमारे अतिथि हैं उनके निर्देशन में हम लोग आज क्या आगे सहायता कर सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ये हम लोग इस